नमस्कार। सत्यहिंदी.com के इस खास कार्यक्रम द विजय त्रिवेदी शो में आपका स्वागत है। हिंदुस्तान की राजनीति में इस समय बड़ा तेजी से रफ्तार से बदलाव हो रहे हैं, परिवर्तन हो रहे हैं। कहीं नाराजगी है, कहीं खुशी है, कहीं लीडर्स बदले जा रहे हैं, कहीं मुख्यमंत्री बदले जा रहे हैं। लगातार कुछ ना कुछ चल रहा है। कहीं पर असंतोष लगता है, कहीं पर कमांड लगता है, कहीं पर कुछ लोग हिटलर शाही बोलते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि डेमोक्रेसी नहीं बची है। इस सब पर बड़ी चर्चा हो रही है। देश की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी पार्टी माने जाने वाली कांग्रेस में इन दिनों घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस की लीडरशिप को लेकर भी चैलेंज किया जा रहा है, मुख्यमंत्रियों को लेकर चैलेंज किया जा रहा है। पंजाब में संकट है, राजस्थान में संकट है, छत्तीसगढ़ में नाराजगी दिखाई दे रही है और इसके साथ साथ केंद्रीय नेतृत्व को लेकर भी एक ग्रुप G23 लगातार कुछ न कुछ हमले करता जा रहा है। देश की सबसे पुरानी लोकतांत्रिक पार्टी, ये सवाल किया जा रहा है कि क्या वहां लोकतंत्र बचा है या नहीं बचा है, क्या उनकी सुनवाई हो रही है जो असंतोष जाहिर कर रहे हैं, या उन्हें पार्टी विरोधी माना जा रहा है। क्या जो पार्टी का नेतृत्व है वो चुनाव करने से कतरा रहा है, बच रहा है, या कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। पार्टी को नए नेतृत्व की जरूरत है, या आज जब 2 अक्टूबर है तो जो कहा जाता है कि महात्मा गांधी ने एक इच्छा जाहिर की थी आजादी के बाद कि कांग्रेस को पॉलिटिकली डिसबैंड कर दिया जाए। उसमें उन्होंने इकोनॉमिक और सोशल तरीके से नहीं कहा था, लेकिन पॉलिटिकली डिसबैंड करने की बात की थी। उस इच्छा को पूरा करने में कोई लगे हुए हैं। कांग्रेस और हिंदुस्तान की राजनीति को बेहतरीन तरीके से लंबे समय से समझने वाले मेरे बड़े भाई, पत्रकार रहे, कांग्रेस के सांसद नेता कुमार केतकर साहब इस वक्त हमारे साथ है। मेरा सौभाग्य है कि उनसे कुछ ज्ञानवर्धन मेरा हो पाएगा। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। क्या हो रहा है कांग्रेस में इन दिनों? मुझे एक कोटेशन याद आ रहा है, वो विंस्टन चर्चिल का कोटेशन है। उन्होंने वो कोटेशन अक्टूबर 39 में दिया था और वो कॉन्टेक्स्ट था सोवियत यूनियन में क्या चल रहा है, इसकी चर्चा हो रही थी। तो उन्होंने कहा था, मैं पढ़ूंगा, इट इज अ रिडल wrapped in a mystery inside an enigma. It is a riddle wrapped in a mystery inside an enigma was his description of the Soviet Union. I think that aptly fits today's Congress. Nobody can actually resolve the riddle. Nobody can actually penetrate the mystery, and nobody can actually identify the features of enigma. This has happened afresh. You can say that this began to happen ever since 2012 or 2010, depending on how you perceive the crisis in the Congress. See, in 2009, Congress got as many as 206 seats. And just 5 years later, Congress got only 44 seats. 44 seats. Now, I think it is necessary to understand why this sudden kind of implosion or sudden drastic fall took place. Now, if we had understood as congressmen, as political analysts, as journalists, what exactly happened? Because let me alert you by making a statement that not a single political journalist, not a single opinion poll said that Congress will be reduced to just 44 seats. Those who were saying Congress will suffer also gave Congress more than 100 seats. And those who were saying BJP will do well, nobody thought BJP will get on its own a majority in 2014. So I think what is happening today in Congress dates back to 2014, but actually 2014 itself was a product of the developments between 2009 and 2014. And therefore, when you say what is happening inside the Congress, we'll have to go back a little, not much, just less than a decade to understand what is happening. And I personally feel that party as such, I'm not saying high command, low command, nothing like that, or state party units. I'm just saying that the party workers in states or party workers at the center, or the leadership at state and leadership at the center has still understood why they lost in 2014 so miserably, and again why they lost in 2019.
they have not been able to figure out that, and not comprehending a problem. Not comprehending a problem itself is a big problem. And I think that is what is happening ये now महत्वपूर्ण in जी। Congress. Yeah. लेकिन सर, जब आपने 2009 से 2014 का जिक्र किया है, 2009 to 2014, और उसमें 12 और 13 की बात कर रहे हैं, तो आप किस ओर इशारा कर रहे हैं? क्या बड़ा महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुआ, बदलाव हुआ कांग्रेस में? मुझे याद आता है कि मैं जयपुर में था जब कांग्रेस की चिंतन बैठक हुई थी, शायद 2013 में, जब राहुल गांधी को उपाध्यक्ष बनाया गया था, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया था, और उसके बाद से बड़े बदलाव हुए। तो लग रहा था कि कांग्रेस में एक नए चेहरे के साथ, नए युवा जोश के साथ शुरुआत होगी। क्या आप उसकी ओर इशारा कर रहे हैं? और उसके बाद लगातार स्थितियां बदलती गई, खराब होती गई। मैं किसी की तरफ इशारा नहीं करना चाहता, लेकिन मैं ये पूछना जरूर चाहता हूँ उन लोगों को जो कहते हैं कि गांधी फैमिली इज द मेन प्रॉब्लम। जी, Gandhi family may be a problem. I am not denying that. The Gandhi family has not been able to handle that, I can understand. But जी, those who say the Gandhi family is the only problem have not been able to provide any alternative. The simple thing is, when Rajiv Gandhi resigned, Rahul Gandhi resigned from his presidentship, he openly told, and that letter is available in the public domain, that you please choose somebody as a president. He told the Congress Working Committee. Since then, nearly 2.5 years, the CWC or the parallel leadership has not been able to even suggest the name, forget choosing the name for the post of president. Now, Yes. it can be a fault of the CWC as well as it can be fault of the Gandhi family. Gandhi family could have said that we are nominating XYZ, somebody is being nominated, you decide what to do with that. And then Yes. they could have left the stage. What they have not done is that they have not created any roadmap after Rahul resigned. So the fault of the party high command is they did not create a roadmap post Rahul Gandhi's resignation, just as the Congress Working Committee did not even create an opportunity for others to handle. तो मुझे लगता है कि ये सवाल गांधी फैमिली क्या करती है, नहीं करती है, ये इम्पोर्टेंट जरूर है, क्योंकि वो नेतृत्व की जगह में है, शीर्षस्थ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाकी सब लोग इसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकते। तो मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी को आत्मचिंतन जो करना होगा, सिर्फ चिंतन का कोई अभी फायदा नहीं, चिंतन तो बहुत हो गया, आत्मचिंतन के बारे में ये सोचना पड़ेगा कि कौन सी कार्रवाई, कौन सी कार्यवाही, कौन सी एक्शन एट district level, at taluka level, at state level, at national level should be taken by understanding why they lost. मुझे लगता है किसी को भी वो हार गए, क्यों हार गए, इसके बारे में मालूम नहीं है, और इसके लिए जो पावर मॉन्गरी थे, जिनको पावर ही चाहिए थी, वो सब बीजेपी में जा रहे थे। अभी ऐसा तो नहीं हो सकता है बीजेपी बाद में गिरेगी तो ये सब वापस आने की कोशिश करेंगे। मैं नहीं ये कह रहा हूँ कि बीजेपी जा रही है इतनी जल्दी, मोदी इतना जल्दी जाएगा नहीं, लेकिन ये ध्यान में रखना चाहिए कि जब तक आपको समझ में नहीं आता है कि आपकी हार क्यों हुई, आप ऐसा तो नहीं कह सकते कि कोई भी डिस्ट्रिक्ट में, कोई छोटे कॉन्स्टिट्यूएंसी में 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी आते हैं, हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी में सिर्फ गांधी जिम्मेदार है उनके पराभव के लिए, ये तो कोई नहीं कह सकता है। लेकिन कोई कहेंगे कि वो जिम्मेदार है कि नहीं, तो जरूर कह सकते हैं कि वो भी जिम्मेदार है। लेकिन दो बातें आप जगह जगह पे वो जो नेता है, उम्मीदवार है, उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि समझ लेने के क्यों वो हार गए। बहुत सारे जो हार गए, जिनके मीटिंग के लिए राहुल और सोनिया भी आ गए थे, वो हारने के बाद बीजेपी में चले गए। तो मतलब उन्होंने भी आत्मचिंतन करना चाहिए था कि हम क्यों हार गए और अभी हम बीजेपी में क्यों जा रहे हैं। वो बीजेपी के खिलाफ तो लड़े थे। जी, लेकिन सर आपने दो बातें कही, आत्मचिंतन की बात, और एक कहा कि कोई नया जो है ऑल्टरनेट सजेस्ट नहीं किया किसी ने। तो क्या आपको नहीं लगता कि ये जिम्मेदारी जो उस समय का नेतृत्व था या मौजूदा नेतृत्व भी वही है, उनको भी नाम सजेस्ट करना चाहिए था? राहुल गांधी जी ने कहा कि भाई मैं नहीं करूंगा, तो उनको करना चाहिए था कि आप इसमें से किसी नाम को चुन सकते हैं। और दूसरी बात जो आपने की महत्वपूर्ण है कि आत्मचिंतन करना चाहिए। तो आत्मचिंतन का फोरम क्या है? आत्मचिंतन का फोरम है AICC, CWC या और? इसमें से कोई बैठक तो बुलाई नहीं, इसकी जिम्मेदारी तो पार्टी लीडरशिप की होगी। बार बार जो G23 ग्रुप जिसे सो कॉल्ड हम लोग कहते हैं, वो भी तो यही कह रहा है कि चिंता कीजिए।
तो कोई जब चिंतन करने के लिए तो सब लोग बैठेंगे ना। आप सब लोग बैठने का कोई मौका मिला है पिछले 7 साल में पार्टी में? नहीं, आप एकदम बराबर बात कर रहे हैं। वो आत्मचिंतन करने के लिए या कलेक्टिवली आत्मचिंतन करने के लिए कोई तो फोरम चाहिए, कोई तो प्लेटफॉर्म चाहिए, कोई तो कमिटी चाहिए, वो हुआ नहीं है। वही तो मैं कह रहा हूँ कि वही तो फॉल्ट है। वो हाईकमांड का भी फॉल्ट है क्योंकि हाईकमांड ने उस पर लीड नहीं लिया है। लेकिन मैं आपको ये भी बात बता सकता हूँ कि हर एक दफा जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर ही अपना स्ट्रक्चर बदलेगी, ऐसी उम्मीद करना ये बराबर नहीं है। स्ट्रक्चर इज फेलिंग, वो स्ट्रक्चर फेल हो गया है तो उसको पैरेलल स्ट्रक्चर खड़ा करना चाहिए। जैसा कि मैं आपको लगेगा कि मैं एक्सक्यूज दे रहा हूँ, लेकिन 1969 में जब निजलिंगप्पा जी ने इंदिरा गांधी को पार्टी से निकाल दिया और बाद में इंदिरा गांधी ने निजलिंगप्पा को निकाल दिया तो पार्टी टूट गई। तो उसका CWC नहीं था, AICC नहीं था, पार्टी का नाम भी नहीं था। इसके लिए कांग्रेस आर और बहुत दिनों के बाद कांग्रेस आए, ये सब चक्कर हो गया। तब स्ट्रक्चर नया बनाया गया, पार्टी टूटने के बाद स्ट्रक्चर नया बनाया गया। उस तरह का नया स्ट्रक्चर बनाने का कोई भी एफर्ट ये जो लोग अभी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं वो नहीं कर रहे। उन्होंने करने दो, इसकी जरूरत नहीं कि वो पार्टी छोड़ दे, उसकी ये भी जरूरत नहीं कि पार्टी टूट जाए, लेकिन आप पैरेलल स्ट्रक्चर तो तैयार करो। सिर्फ एक लेटर लिखने से, आप जब लेटर लिखते हैं प्रेसिडेंट को तो आप ये मानते हैं कि हम यही स्ट्रक्चर में रहना चाहते हैं। अभी टाइम आ गया है ऐसा कि अभी स्ट्रक्चर में ही चेंज करने की जरूरत है, और वो स्ट्रक्चर में चेंज करने के लिए जो नाराज है वो भी नहीं इंटरेस्ट ले रहे हैं और जो सपोर्टर है वो भी नहीं इंटरेस्ट ले रहे हैं। इसी के लिए मैंने कहा कि जब कोई आपको अंदर से ऐसा लगता नहीं है कि हमारी पार्टी बदलनी चाहिए और किस तरह बदलनी चाहिए, क्या रोड मैप होना चाहिए, ये जब तक आपको यहाँ से नहीं होता लगता तब तक सिर्फ हाईकमांड, गांधी फैमिली, लोकल यूनिट, पैसा, भ्रष्टाचार, इसका नाम लेके ये सवाल छूटेगा नहीं। 543 MPs इन लोकसभा रिड्यूस्ड, कांग्रेस रिड्यूस्ड टू 44 सीट्स, ये बहुत बड़ा आवाज, ये बहुत बड़ा डिफीट है। और वॉर की तुलना करेंगे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो ये बहुत बड़ा सेटबैक है। और इस तरह का सेटबैक वो भी फैसिस्ट फोर्सेस की तरफ, ये बहुत बड़ा धोखा है। और जब फैसिज्म सामने दिख रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि फैसिज्म किसको समझ में नहीं आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है। फैसिज्म सामने दिख रहा है, फिर भी इन लोगों की तैयारी है कि हम बीजेपी में जाएंगे, तृणमूल में जाएंगे, समाजवादी पार्टी में जाएंगे, लेकिन हमारा स्ट्रक्चर हम सुधरेंगे नहीं। इस तरह से सेल्फ इंटरेस्ट से काम चलेगा। उनको यही करना पड़ेगा, मैं जिस पार्टी में हूँ वही बदलनी चाहिए। नहीं है तो वो कैसे बदले? आप कुछ रास्ता सुझाइए कि कैसे बदले। वो यही तो चाह रहे हैं कि बदले, कैसे बदले। जो फिर मैं अगला सवाल एक इसी के साथ जोड़ना चाहता हूँ कि क्या आपको नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी में, जो मुझे थोड़ा सा समझ में आता है बाहर से, कि एक मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट यह है कि बाय एंड लार्ज हमने मतलब जो भी कांग्रेस में लोग बैठे हुए हैं उन्होंने ये समझ लिया है कि ये पार्टी गांधी परिवार एंड सन्स है या प्राइवेट कंपनी ऑफ गांधी परिवार है, इसलिए उनको डिसाइड करना है या उनके खिलाफ डिसाइड करना है या उनके सपोर्ट में डिसाइड करना है। किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी जैसे लेफ्ट पार्टीज को ले ले या बीजेपी को ले ले, वहां पर कोई पार्टी का कोई सरनेम नहीं है। यहाँ गांधी, और इसका उदाहरण है बहुत सारे। आप नेहरू से लेकर राहुल गांधी तक चले जाएं, इंदिरा गांधी के वक्त चले जाएं। इंदिरा गांधी के खिलाफ जब आपने किया, नेहरू को छोड़ दें कि नेहरू के बाद जब सुभाष चंद्र बोस और नेहरू का जो झगड़ा हुआ या उनको छोड़ दें क्योंकि गांधी की बात है, लेकिन इंदिरा गांधी के वक्त क्या हुआ जो आपने जिक्र किया 1969 का निजलिंगप्पा को लेकर, या फिर 78 में जिस तरह से कांग्रेस दोबारा से टूटी, इंदिरा गांधी ने नई पार्टी बनाई, या फिर जब नरसिम्हा राव के वक्त में सोनिया गांधी के बैक सपोर्ट से ऐसा कहा जाता है कि बहुत सारे लोग अलग निकले, नरेंद्र तिवारी और सब लोग निकले, या फिर जिस तरह से जितेंद्र प्रसाद खड़े हुए सोनिया गांधी के खिलाफ, उसका क्या नतीजा निकला, या राहुल गांधी के खिलाफ आज जो लोग बोल रहे हैं उनको आप असंतुष्ट नहीं मानते, उनको बागी मानते हैं, कपिल सिब्बल के घर पे प्रदर्शन करते हैं। तो ये जो प्राइवेट कंपनी का जो एक मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है ऐसा माना जाता है, ये एक बेसिक प्रॉब्लम तो नहीं है? मुझे लगता है दो चीज आप सेपरेट कर दो। जिन्होंने निदर्शन किए उनको बागी कोई भी लीडर ने कहा नहीं है, वो मीडिया ने कहा है। दूसरी बात, जो निदर्शन करने गए वो बहुत ही कम थे, ज्यादातर कांग्रेस में उनकी भूमिका को समर्थन था कि वो जो सवाल उठा रहे हैं
शिवपाल जी हो या गुलाम नबी आजाद, कोई भी हो, ग्रुप 23 हो, वो जो सवाल उठा रहे हैं वो सवालों के बारे में सिंपथीज है मेजॉरिटी ऑफ द कांग्रेसमैन ऑल ओवर द कंट्री। इसके लिए वो सब उनको बागी नहीं मानते हैं। वो बागी मानने वाले एक दो तीन कोई होंगे लीडर, और निदर्शन करने वाले तो बहुत ही कम है। तो वो बात हम अलग करेंगे। लेकिन सवाल यह है कि आपने कहा कि क्या कर सकते हैं, कौन सा प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हैं। अभी तो ऐसा हो गया है कि हर एक पार्टी मीडिया का ही प्लेटफॉर्म यूज करती है। अभी मीडिया अकॉर्डिंग टू मी इज अ वेरी इनएडिक्वेट एक्सपोजर टू द फंडामेंटल क्राइसिस व्हिच इज पॉलिटिकल एज वेल एज पार्टी। अभी देखो, आपने कहा कि गांधी परिवार का कंट्रोल है, बराबर है, आपका जो कहना है वो बराबर है। लेकिन ऐसी कौन सी पार्टी है, ममता की पार्टी में ममता का कंट्रोल है, शरद पवार की पार्टी में शरद पवार का कंट्रोल है, अखिलेश की पार्टी में अखिलेश का कंट्रोल है, मायावती की पार्टी में मायावती का कंट्रोल है, उमर अब्दुल्ला की पार्टी में उमर अब्दुल्ला का कंट्रोल है, महबूबा के पार्टी में महबूबा का कंट्रोल है। ऐसे बहुत कम पार्टी है, जैसे कि सीपीएम, उसमें और कांग्रेस में फर्क है ना, कांग्रेस में और इन पार्टियों में फर्क है, क्योंकि वो हिंदू पार्टी नहीं, वो ठीक है, बराबर है। सीपीएम, सीपीआई और बीजेपी, ये तीन कह सकते हैं कि हम इंडिपेंडेंट ऑफ सच इंडिविजुअल है, लेकिन वो अभी नहीं कह सकते। अभी बीजेपी नहीं, आरएसएस भी मोदी के ऊपर इतनी डिपेंडेंट हो गई है कि मोदी का सिर्फ पॉलिसी डिसीजन नहीं, मोदी के सिवा कोई भी उनका चल सकता नहीं है मोदी के सिवा। तो वो डायनास्टी नहीं हो, लेकिन डायनास्टी नहीं होते हुए भी एक चालकानुवर्तित्व के जैसे उधर मोहन भागवत आरएसएस चलाता है, उसी तरह इधर मोदी भी चलाता है। अभी उधर भी डेमोक्रेटिक प्लेटफॉर्म नहीं है। पार्टी के अंदर के जो बहुत सारे एमपीज है और एमएलएज है, वो प्राइवेटली हमको बोलते हैं हमको कोई वॉइस ही नहीं है, हमको कोई रोल ही नहीं है, हमको कोई पूछता भी नहीं है, ऐसा वो प्राइवेटली कहते हैं। लेकिन उनकी हिम्मत ये नहीं है कि वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जाके कहे। तो ये जो है, ये पॉलिटिकल मैलेस है, और ये पॉलिटिकल मैलेस अक्रॉस द पॉलिटिकल प्रोसेस चल रहा है। कांग्रेस में सबसे ज्यादा है, क्योंकि कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी है और सबसे ज्यादा बरस कांग्रेस ने रूल किया है। लेकिन एक हम समझना चाहिए, कांग्रेस का क्राइसिस और दूसरा पॉलिटिकल क्राइसिस अक्रॉस द कंट्री। अभी आज हम 2021 में बात कर 2021 में बात करें, जस्ट इमेजिन 2031 में इनमें से कितने लोग अपने नेशनल स्टेज पर रहेंगे। दैट टाइम नरेंद्र मोदी जी विल बी 81 year old, and will he be able to function the way he is functioning now? He may claim he can, but actually it is not possible. Sharad Pawar is already 81. 10 years down the line, 2031, he will be 91. So actually all parties are in crisis of leadership. All parties are in crisis of organizational structure. Nobody has a roadmap, and nobody has a program, and nobody has any theoretical understanding of what is happening and why. सर, मुझे नहीं पता कि ये कांग्रेस के लिए एक्सक्यूज हो सकता है कि नहीं हो सकता, कि जो आप कह रहे हैं ये सच है, जो आपने जितना जिक्र किया है सारी पार्टीज का, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का, इंटरनल डेमोक्रेसी का, वो ठीक है। लेकिन क्या ये कांग्रेस के लिए एक्सक्यूज हो सकता है, और कांग्रेस के लिए इससे कोई फायदा हो सकता है बचाव के अलावा? पहली बात इसको। लेकिन मैं दूसरी बात कह रहा हूँ कि 19 साल सोनिया गांधी जी अध्यक्ष, 98 से 2021 तक गांधी परिवार वहां पर अध्यक्ष है, सोनिया जी अध्यक्ष रही एक बार लगातार, फिर राहुल गांधी आए, और फिर राहुल गांधी ने जब छोड़ा तो फिर अंतरिम अध्यक्ष के तौर पर सोनिया गांधी आ गई। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी में 10 कांग्रेस बीजेपी अध्यक्ष बने, 10। और नरेंद्र मोदी जी के रहते हुए भी राजनाथ सिंह, अमित शाह, जेपी नड्डा, 3 अध्यक्ष वहां पर बन गए पिछले 7 साल में। ठीक है, लेकिन मुझे कंपैरिजन नहीं करना। मैं आज हम भारतीय जनता पार्टी की बजाय कांग्रेस की चिंता, बीजेपी की जब चिंता होगी, और यदि वो भी इसी रास्ते पर चल रहे हैं तो उसका नतीजा भी वही होगा। ठीक है, लेकिन जब अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को दोबारा बनाया गया राहुल गांधी के बाद, तो क्या आपको नहीं लगता कि उस वक्त कोई अंतरिम अध्यक्ष दूसरा बनाया जाता, भले ही वो उसको एक पूरा जो लीडरशिप मानते हैं हम गांधी परिवार की वो रहती, और एक नया अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद, कपिल सिब्बल, जो भी है, मनीष तिवारी या कोई भी आदमी होता, मैं किसी नाम की बात नहीं कर रहा, वो बनता तो क्या फर्क पड़ जाता, गांधी परिवार पीछे से रहता। ये वैसी कहावत है कि जो कहते हैं हिंदी में कि मन में आवे मूड हिलावे, कि मन में तो है इच्छा कि हम ही दुकान पर कब्जा रखें, लेकिन दिखाने के लिए, केतकर साहब को बताने के लिए, विजय त्रिवेदी को बताने के लिए, मीडिया को बताने के लिए, कहें नहीं हम नहीं चाहते। क्योंकि एक उदाहरण मुझे बताया एक मित्र ने कि सोनिया गांधी जी के एक बहुत निजी सचिव को राज्यसभा भेजा जाना था, और प्रधानमंत्री कार्यालय मनमोहन सिंह जी थे, उन्होंने पूछा कि क्या इनको बनाना है, तो उन्होंने लिखा कि नहीं, ऐसा नहीं है, जो ठीक लगे वो करिए। और जब उनको नहीं बनाया गया तो उसकी नाराजगी जाहिर की गई।
और जितेंद्र प्रसाद का मैंने जिक्र आपको किया ही है कि वो उनका क्या हश्र हुआ। तो ये दोनों बातें बहुत अलग। अमरिंदर के साथ क्या हुआ, कैप्टन अमरिंदर के साथ अभी उन्होंने ऐसा क्या गलत किया था? उन्होंने भी बाही बात कही थी, लेकिन आपने उनको रास्ता दिखा दिया। तो जो भी लीडरशिप को चैलेंज करेगा वो नहीं चलेगा, ये मैसेज तो क्लियर है। मैं आपके सब मुद्दों को मैं मानता हूँ, लेकिन मेरे पास उसका जवाब नहीं है, ऐसा कहना भी बराबर नहीं। मेरे पास सवाल है। सवाल ये है कि इशू क्या है, क्रक्स क्रूशियल इशू, सेंट्रल पॉइंट क्या है? एक है इलेक्टोरल विक्ट्रीज, क्योंकि पूरा जो हम कह रहे हैं हार रहे, पीछे पड़ गए, ये सब इलेक्टोरल की बात है। मतलब इलेक्शन के सिवा कोई पॉलिटिक्स ही नहीं है, इस तरह का हम हाइपोथेसिस मान रहे हैं। तो वो नहीं मानने के लिए मैं तैयार नहीं, लेकिन फिर भी मानेंगे, क्योंकि इलेक्शन एक टेस्ट होती है और इलेक्शन में जीतना इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन इलेक्शन में जीतना, यही उद्देश्य लेके जब आप चलते हैं, इलेक्टोरल विक्ट्री और डिफीट, तब लोग कहते हैं कि ठीक है, मुझे जीतना ही है और कांग्रेस से नहीं जीतूंगा तो मैं बीजेपी भी जाऊं। तो एक है इलेक्टोरल पावर बेस और दूसरा है आइडियोलॉजिकल पावर बेस। अभी ऐसा हो गया है, कोई भी पार्टी में आइडियोलॉजिकल पावर बेस नहीं है। देखो, मैं एक छोटा सवाल आपको पूछता हूँ। बीजेपी कह रही है कि हम कांग्रेस मुक्त देश करेंगे, ठीक है, कर दो। कांग्रेस मुक्त करना है देश तो करो, लेकिन जब कांग्रेस मुक्त आप करना चाहते हैं तो हर एक कांग्रेस वाला आप आपके पार्टी में ले रहे हैं। महाराष्ट्र में कम से कम 40 कांग्रेस जन सीनियर लीडर्स ये बीजेपी में आ गए। मध्य प्रदेश में तो साक्षात ज्योतिरादित्य आ गए, हेमंत शर्मा। पिछले 7 साल में 177 एमपीज और एमएलए कांग्रेस छोड़कर चले गए हैं दूसरी पार्टी में, बीजेपी। तो इसका मतलब है कि जो कांग्रेस छोड़ के चले गए उनका इलेक्टोरल बेस कम हुआ और पावर बेस तो चाहिए। इसके लिए जहां पावर है वहां वो चले गए। मतलब क्राइसिस जो है वो इलेक्टोरल डिफीट, एक क्राइसिस है, वो बराबर है और कुछ करना चाहिए उसके बारे में। लेकिन मेनली इनके दिल में या इनके व्यवहार में कोई भी आइडियोलॉजी नहीं, इनके पास कोई विचार सरणी नहीं, कोई आदर्शवाद नहीं है। कोई, मैं नहीं कह रहा हूं कि आप समाजवाद की भूमिका ले लो, मैं नहीं कह रहा हूं कि आप गांधीवाद डायरेक्टली प्रैक्टिस करो। आपकी विचार सरणी क्या है? आपकी विचार सरणी जब मुझे समझ में नहीं आता है, जो लोगों ने पूरा लाइफ, एक फैमिली नहीं, 2-3 जनरेशंस जिन्होंने कांग्रेस पे रहे हैं, वो जाके नागपुर में जाके सदा वत्सल कह सकते हैं वहां पे आरएसएस को। मतलब जहां गोडसे है, गोडसे की लाइन चलती है, वहां कांग्रेस पे 3 जनरेशन काम करने वाला आदमी वहां जाके कैसा नमन कर सकता है? ये सवाल है। मैं ये नहीं मानता कि कांग्रेस में ही रहो। मैं ये समझ सकता हूँ कि आप कांग्रेस पे नाराज हो, कांग्रेस आपको इलेक्टोरल विक्ट्री नहीं दे रहा है, आप लीडरशिप पे नाराज हो, लेकिन आप कोई सेक्युलर पार्टी नहीं चूज कर रहे हो। आप चूज कर रहे हो जो पार्टी जिसके बारे में और जिसके खिलाफ आपने पूरा लाइफ आपका कैंपेन किया है, और वही पार्टी में जाते हैं आप। तो इसका मतलब ये है तो उनको आइडियोलॉजी से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ पावर और इलेक्टोरल पावर, इससे ही मतलब है। मेरा जो दुख है वो ये है, आप पार्टी छोड़ सकते हैं, गांधी फैमिली के ऊपर नाराज हो सकते हैं, लेकिन आप आरएसएस पे कैसे जा सकते हैं? ये इसके लिए मैं कहता हूं कि अभी अपने देश में, इसके लिए मैंने 10 बरस टू 10 years from now का जिक्र किया कि अभी अपने देश में आइडियोलॉजी इज ऑन डिस्काउंट। कोई भी आइडियोलॉजी की बात ही, आप देखो कोई भी पेपर उठाओ, सीपीएम सीपीआई में भी क्या चलता है। कम्युनिस्ट पार्टी में आइडियोलॉजी तो फंडामेंटल था, आजकल पार्टी में आइडियोलॉजी का चर्चा ही नहीं है। सीपीआई में चर्चा करोगे तो ममता को कैसा रिपीट करने का ये चर्चा है। पार्टी आइडियोलॉजिकल बेसिस पे कैसे खड़ी करना, ये उधर भी चर्चा नहीं है। समाजवादी पार्टी ने तो कभी लोहिया नहीं छोड़ दिया था, तो इन लोगों ने भी छोड़ दिया है। मायावती की पार्टी में क्या आइडियोलॉजी समझता नहीं, उनको लगता है कि आज ब्राह्मण को साथ लो तो वो आइडियोलॉजी नहीं। अलायंसेस टैक्टिकल है, लेकिन आइडियोलॉजी की जब बात शुरू करेंगे तभी इस मैलिस को जवाब मिलेगा। मुझे नहीं लगता कांग्रेस या एनी अदर पार्टी इज एम्फसाइजिंग ऑन आइडियोलॉजी, एंड दैट इज अ लार्जर मैलिस. But I agree with you, I totally agree with you that the crisis in Congress is very deep, and it is because the High Command has not taken initiative in defining the parameters of organization.
जी सर, आपने बहुत गंभीर और महत्वपूर्ण बात कही है कि जो आइडियोलॉजी है उसका एक डेफिशिएंसी हो रही है, लोगों को कोई चिंता ही नहीं है। ये बात व्यक्ति के तौर पर बहुत सही है कि लोग जा रहे हैं, छोड़ के जा रहे हैं, जहां उनको जीत मिलती है वहां तक। सब पार्टियों में ऐसा हो रहा है, कांग्रेस में भी हो रहा है, और वो इसलिए हो रहा है क्योंकि पावर गेम अभी थोड़ा सा उससे दूर है, तो सब लोग उधर से जा रहे हैं। हो सकता है कभी पार्टी कांग्रेस आ जाए तो फिर, और हुआ ही है, हमने देखा है कि कांग्रेस में बहुत जमाने तक लोग आते रहे अलग अलग पार्टियों से। मेरा इशू वो नहीं है व्यक्ति। आपने आइडियोलॉजी की बात की, तो क्या आपको लग रहा है कि कांग्रेस एज ए पार्टी आज अपनी आइडियोलॉजी पर स्टैंड कर रही है? एक जमाने तक जब से मैंने पढ़ना लिखना सीखा, समझना सीखा, तो कांग्रेस को एक सेक्युलर पार्टी के तौर पर और माइनॉरिटी के हित रक्षक के तौर पर पार्टी को समझा। भले ही उसे लोग माइनॉरिटी का अपीजमेंट कहते हैं, लेकिन आज आपकी लीडरशिप कुर्ते के ऊपर जनेऊ पहनकर ये बताती है कि वो मुसलमानों से दूर रहना चाहती है। वो हिंदू पार्टी है, उसका गोत्र क्या है, उसका नेता कौन है, और वाराणसी से प्रयाग तक यात्रा करोगे आप उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए, अयोध्या से चुनावी यात्रा शुरू करोगे। तो जब पार्टी लेवल पर ये आइडियोलॉजी और ये डर बना रहता है उनको कि कहीं आप पर एक टैग ना आ जाए कि आप मुसलमानों के साथ, तो ये तो पार्टी के लेवल पर आइडियोलॉजिकल चेंज है ना। एकदम, आप एकदम बराबर बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को खुद को अभी आज के नए जमाने में क्या अपनी आइडियोलॉजी यही समझ में नहीं आता जी। एक जमाने में उनको लगता था समाजवाद अपनी आइडियोलॉजी, दूसरे जमाने में उनको लगता था नेहरूवाद अपनी डेफिनेटिव आइडियोलॉजी। आजकल नेहरू का नाम जितना बीजेपी लेती है बदनाम करने के लिए, उतना कांग्रेस भी नहीं लेती। कांग्रेस में नेहरू को जिंदा रखा है बीजेपी ने। कांग्रेस ने, मुझे बताओ 2009 2019 कभी कांग्रेस ने नेहरू के लाइन का प्रचार करके, मुझे लगता है, मुझे पर्सनली आप पूछोगे तो अपने देश के लिए एक ही आइडियोलॉजिकल लाइन है। कम्युनिस्ट पार्टी भी नहीं और हिंदुत्व भी नहीं और स्वतंत्र पार्टी भी नहीं और समाजवादी पार्टी भी नहीं। नेहरूवाद इज द ओनली आइडियोलॉजी। क्या है नेहरूवाद? नेहरूवाद है मिक्स्ड इकोनॉमी। नेहरूवाद है सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म का मतलब वो अमेरिकन और यूरोपियन सेक्युलरिज्म नहीं है। सेक्युलरिज्म मतलब अपना देश, इतनी भाषा, इतने समाज, इतनी संस्कृति, तो उनको सर्वसमावेशक वो नेहरूवाद है। और नेहरू ने वो किया है। नेहरू नहीं होते तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी सेटअप ही नहीं होता। तो मुझे लगता है कि वो जो आइडियोलॉजी है नेहरू जी की, वो नेहरू जी की आइडियोलॉजी कांग्रेस वाले कितने लेते हैं लोगों के पास? कितने कांग्रेस वालों ने नेहरू जी का विचार पढ़ा है या नेहरू जी का विचार लेके जाते हैं वो कांग्रेस के लोगों के सामने? आइडियोलॉजी वही, हारने दो, इलेक्शन हारने दो, नेहरू की आइडियोलॉजी को इलेक्शन डिफेंड हारने दो। इलेक्शन हारने का कोई मुझे डर नहीं लगता है। इलेक्शन हारेंगे। 1977 में जब इंदिरा गांधी हार गई और संजय गांधी भी हार गए और कांग्रेस भी हार गई, आपको याद होगा, उसके बाद कांग्रेस फिर से हट टूट गई, क्योंकि कांग्रेस हारने के बाद बहुत सारे लोग गए। तो कांग्रेस को 153 सीट्स आए थे, उसके एकदम कुछ 69-70 बच गए, मतलब आज से 44 के थोड़े जरा ही ज्यादा। लेकिन फिर भी इंदिरा गांधी ने उसको आइडियोलॉजिकल टोन दिया, और वो आइडियोलॉजी, सब लोग इंदिरा गांधी का नाम लेते ही इमरजेंसी की याद करते। इंदिरा गांधी का लाइफ पूरा इमरजेंसी से निगडित नहीं है। इंदिरा गांधी 1966 से 1975 में इमरजेंसी आई। तो 1966 टू 1975 इंदिरा गांधी ने जो पॉलिसी ली थी उसकी जिक्र कोई नहीं करता। इंदिरा गांधी इमरजेंसी, इंदिरा गांधी डिक्टेटरशिप, ऐसा नहीं हो सकता है। मुझे लगता है कि इंदिरा गांधी जी ने जो आइडियोलॉजी के ऊपर रखा पार्टी, उस तरह के, अब देखो अभी कोई नहीं मांग कर रहा था 1975-76 में या 74 में या 72 में, कोई भी नहीं ये मांग कर रहा था कि राज्य घटना में, कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म ये टर्म्स यूज करो। किसने मांगी थी? किसी ने भी नहीं। मैं जर्नलिस्ट था तब भी, अभी भी जर्नलिस्ट था, कभी मैंने सुना नहीं है, कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से भी सुना नहीं है, समाजवादी पार्टी की तरफ से सुना नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्युलरिज्म एंड सोशलिज्म ये शब्द ऐड करो। किसी ने मांग नहीं की। फिर भी इंदिरा गांधी ने वो शब्द यूज किए और प्रीएम्बल में लाए। अभी उसको थोड़ा सा विरोध हुआ बाद में, लेकिन अभी तक इतने पार्टी के राज आ गए बीच में। वाजपेयी का 6 वर्ष, मोदी जी का अभी 7 वर्ष हो गए, जनता पार्टी, बहुत सारे लोग आ गए। 77 में जनता पार्टी आ गई, किसी ने हटाया नहीं। क्यों नहीं हटाया? आप उनको मेजॉरिटी थी, क्यों नहीं हटाया? क्योंकि जो बुनियादी इश्यूज है देश की, सोशलिज्म का मतलब को सोवियत सोशलिज्म या चाइनीज सोशलिज्म नहीं है। सोशलिज्म का इसेंशियल मतलब इंडिया के अंदर सोशल जस्टिस है।
और सोशल जस्टिस के लिए लड़ना, ये उसका मुख्य भाव है। तो मुझे लगता है कि सोशलिज्म और सेकुलरिज्म ये शब्द ऐड करने के बाद किसकी हिम्मत क्यों नहीं हुई, क्योंकि उनको समझ में आया कि इसको हाथ लगाएंगे तो उनकी प्रतिमा नीचे जाएगी, हम क्या कर रहे हैं। उनको तो दिखाना है, आरएसएस भी दिखा रही है आजकल कि हम भी सेक्युलर है। अभी सब लोग कहते हैं हम सेक्युलर है। अरे आप तो सब, हम लोगों को सुडो सेक्युलर कहते थे, अभी आप सेक्युलर हो गए। आप सेक्युलरिज्म की मजाक उड़ाते थे, लेकिन आप कहते हैं अभी आप सेक्युलर है। सोशलिज्म की आप मजाक उड़ाते थे, लेकिन आप कहते हैं अभी गांधीयन सोशलिज्म है, ये सोशलिज्म है, वो सोशलिज्म है। इसका मतलब यह है कि सोशल जस्टिस का जो बुनियादी मुद्दा है और सेक्युलरिज्म का जो बुनियादी मुद्दा है, वो अमेरिकन यूरोपियन सोशलिज्म और सेक्युलरिज्म के आइडिया से नहीं आता है, चाइनीज सोवियत से भी नहीं आता है। वो इंडियन वैरायटी है और उसके लिए पूरे देश में एक्चुअली कंसेंसस है। लेकिन वो कंसेंसस को लेके कांग्रेस वालों ने आगे बढ़ना चाहिए। कांग्रेस वाले इंस्टेड ऑफ दैट पावर के पीछे पड़ते हैं, इलेक्टोरल पावर, और वो नहीं आएगा तो कांग्रेस आएगी तो उधर आ जाओ। तो मुझे लगता है इस तरह से कांग्रेस बढ़ेगी नहीं, कांग्रेस बढ़ेगी नहीं। इस तरह से चर्चा करेंगे तो कांग्रेस वालों को यह तय करना होगा कि उनका विश्वास नेहरूवादी आइडियोलॉजी पे है या नहीं है। इलेक्शन की बात अलग है। तो मुझे लगता है ये बुनियादी क्राइसिस। सर, आपका सवाल जो सजेशन है बहुत महत्वपूर्ण है। इलेक्टोरल पावर को और आइडियोलॉजी को देखने के लिए बीजेपी को भी कांग्रेस को बीजेपी से सीखना चाहिए कि 1951 से जनसंघ से लेकर 1996 तक तो बिना पावर के पार्टी सरवाइव की है। और आपने इमरजेंसी का और उसके बाद का जिक्र किया इंदिरा गांधी का कि टूटी पार्टी, और फिर वो 1984 में जिस तरह से बीजेपी 2 एमपीज पर रह गई, लेकिन वो एक कंसिस्टेंट तरीके से, उनकी आइडियोलॉजी से हम सहमत हो नहीं हो अलग इशू है, लेकिन वो अपने रास्ते पर चलते रहे। बराबर, दिस इज करेक्ट, दे रिमेन लॉयल टू देयर आइडियोलॉजी। लेकिन वो भी बात आप ध्यान में रखो, मोदी आने के बाद उन्होंने वो आइडियोलॉजी भी छोड़ दी है। अभी उनका आइडियोलॉजी एक ही है, पावर। पहले जब 1984 में 2 ही सीट आई थी तब, या उसके पहले, या 1989 में हारने के बाद, 1991 में हारने के बाद उन्होंने 1992 में बाबरी मस्जिद की, वो वही आइडियोलॉजी से की। मुझे मंजूर नहीं है, मुझे लगता है वो फैसिज्म की शुरुआत है, लेकिन उन्होंने वो आइडियोलॉजी पे काम हम आइडियोलॉजी के सपोर्ट पर बात नहीं कर रहे, लेकिन ओवरऑल ये सोशल कॉन्सेप्ट में बदलाव आया है कि आप सोचिए, मैं एक जमाने तक जब हम बचपन में देखते थे तो नेहरू जी के बड़े जो स्टेडियम होते थे हमारे देश के, क्रिकेट स्टेडियम या स्पोर्ट्स स्टेडियम, वहां पे नेहरू जी के होर्डिंग लगे रहते थे जिसमें लिखा हुआ था नेहरू के कोट करते हुए कि खेल खेल की भावना से खेलो। वो एक आइडियोलॉजी थी कि भाई खेलना है तो खेल की भावना से खेलो, जीतना जरूरी नहीं है। आज हमारा सवाल होता है कि ओलंपिक गए तो कितने लोग जीते, कितना पैसा खर्च किया, कितना डेलीगेट थे हमारे, और उसमें से कितने मेडल मिले। तो ओवरऑल ये सोसाइटी के थॉट प्रोसेस में बदल गया है। ऐसा नहीं लगता केवल कांग्रेस की परेशानी नहीं है, और लीडरशिप आजकल केवल इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से तय हो रही है। नहीं, वो कांग्रेस की परेशानी सिर्फ नहीं है, सच है। लेकिन ये कांग्रेस की जिम्मेदारी है, कांग्रेस की ये ऐतिहासिक जिम्मेदारी है, क्योंकि 1885 से लेकर उन्होंने कोई एक तरह से विचार किया है। तो उनकी ऐतिहासिक जिम्मेदारी है कि देश में कुछ भी होने दो, बाकी पार्टियां कैसे भी बिहेव करो, हम चलेंगे तो आइडियोलॉजी के साथ ही चलेंगे। नहीं तो आपको मालूम होगा, लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी और उसके बाद जवाहरलाल नेहरू, ये सब ट्रांसफॉर्मेशन है, लेकिन उसमें आइडियोलॉजी का एक धागा था, वो पूरा रहता था। वो अलग अलग थे। तिलक और गांधी में 100% दे वर नॉट ऑन द सेम पेज। गांधी और नेहरू भी बहुत दफा एक के खिलाफ लिखा है उन्होंने, लेकिन धागा एक। अभी ऐसा नहीं, अभी मनमोहन सिंह ने भी कहा था कि आज नेहरू होते तो लिबरलाइजेशन पॉलिसी लेते। आपको याद होगा जब मनमोहन सिंह के ऊपर क्रिटिसिज्म हुआ कि वो नेहरू हाथ को छोड़ रहे हैं, तो उन्होंने कहा नेहरू जी आज होते तो इतने लिबरल थे कि वो कहते कि अभी पॉलिसी बदलनी चाहिए। मनमोहन सिंह ने कभी नेहरू को छोड़ा नहीं, कोई भी नहीं, किसी ने भी नेहरू को, वाजपेयी जी ने छोड़ा नहीं। आपको याद होगा वाजपेयी जी को पूछा था आपकी फॉरेन पॉलिसी क्या है, उन्होंने कहा हमारी क्या, जो नेहरू जी ने दी है वही फॉरेन। तो वाजपेयी जी भी वही कहते थे। तो मुझे लगता है वो बुनियादी बात है आइडियोलॉजी की, और अपने देश के लिए एक ही आइडियोलॉजी है, वो नेहरू, बेस्ड ऑन गांधी। जी सर, आपने जो बार बार घटना का जिक्र किया, इंदिरा जी का जिक्र किया, इंदिरा गांधी का, दो बार 1969 और 78 का जिक्र किया, मैं एक अहम सवाल आपसे जानना चाहता हूं जो आज कांग्रेस में चल रहा है, प्रेजेंट क्राइसिस। क्या राहुल गांधी को ये हिम्मत दिखानी चाहिए
जैसे आप आइडियोलॉजी की बात कर रहे हैं उसी रेफरेंस में, क्योंकि राहुल गांधी भी मुझे लगता है कि वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से ज्यादा जो भी पॉलिसी है जो वो मानते हैं उस पर चलते हैं। तो क्या उनको ये हिम्मत करनी चाहिए कि वो एक पार्टी को स्प्लिट करके एक नई पार्टी बनाए कि भाई ये आइडियोलॉजी कांग्रेस की है, हम इस पर चलेंगे, जिनको रहना है वो अभी जो कांग्रेस है उसको आप संभाल लीजिए। क्या ये करना चाहिए? इंदिरा गांधी ने जो हिम्मत दिखाई वो राहुल गांधी को करना चाहिए या दिखा सकते हैं? एक वो वर्टिकल स्प्लिट जो है। नहीं, मैं कहता हूँ कि कोई भी जो स्प्लिट होता है वो किसी की इच्छा से प्लान करके स्प्लिट नहीं होता है। जब वो क्राइसिस वहां तक पहुंच जाता है कि अभी हम नहीं रह सकते साथ, वो डाइवर्स की तरफ है कि बहुत सारा डाइवर्स के प्लान करते हैं लेकिन शादी चलती रहती है। एक पॉइंट आता है कि डाइवर्स करना जरूरी पड़ता है। वो पॉइंट अभी तक आया है कि नहीं मालूम नहीं, मुझे लगता है आया है। लेकिन वो स्प्लिट करेगा तो कौन से इश्यूज पे? आइडियोलॉजी के इश्यूज पे करना पड़ेगा। अभी आइडियोलॉजी मुझे फर्क दिखता ही नहीं है, कपिल सिब्बल की आइडियोलॉजी और राहुल गांधी की आइडियोलॉजी एक ही है। तो फर्क क्या है? फर्क यह है कि आप पार्टी को पावर में लाने के लिए कोई आपके पास रोड मैप नहीं है। ये तकरार है कोई लोगों की, और कोई लोगों की तकरार है कि रहने दो, हम ऐसा ही चलेंगे, गांधी फैमिली के साथ रहेंगे। ऐसा गांधी फैमिली है, आइडियोलॉजी का नाम नहीं है। गांधी नहीं सर, फैमिली लेकिन आइडियोलॉजी का नाम नहीं है। ये एक सेंटर ऑफ क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कैंपेन पॉइंट है, बाकी कुछ नहीं। नहीं, गांधी जैसे फैमिली हमेशा के लिए 78 79 की स्प्लिट का जिक्र करें हम, तो वो 78 79 की स्प्लिट जो है वो आइडियोलॉजिकल स्प्लिट नहीं थी, मुझे ऐसा लगता है, आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं। जब वो मध्य प्रदेश में पीसी सेठी हो, बिहार में कुछ और नेता हो, महाराष्ट्र में चौहान साहब हो, कुछ और लोग जुड़े हुए हो, आंध्र प्रदेश में कुछ लोग हैं, तमिलनाडु में अलग लोग हैं, वो उन लोगों ने एक सेंट्रल लीडरशिप के खिलाफ खड़े हो गए, ब्रह्मानंद रेड्डी से लेकर वहां तक। या 68 में जिस तरह से हुआ कि कामराज या सिंडिकेट और कांग्रेस, तो वो दोनों वक्त में मुझे नहीं लगता कि जब कांग्रेस मेजर तौर पर स्प्लिट हुई, वैसे अभी तक तो 60 बार स्प्लिट हो गई, वो छोटे छोटे अपने अपने पावर और इंटरेस्ट की वजह से हुई, लेकिन दो जो मेजर स्प्लिट है जिसे हम मानते हैं, इंदिरा गांधी ने जब दोनों बार की, जिसका लीड उन्होंने किया, वो दोनों स्प्लिट मुझे नहीं लगता कि आइडियोलॉजिकल स्प्लिट थी। तो आज फिर ये एक्सक्यूज क्यों हम दें कि आइडियोलॉजिकल स्प्लिट, वो कब, वो मुझे लग रहा है क्योंकि देश के जितने राज्यों में छत्रप है, जिन्हें आप रीजनल लीडर्स कहते हैं, वो मौजूदा लीडरशिप के खिलाफ खड़े हो गए, खासतौर से जो मजबूत है, चाहे वो अशोक गहलोत हो, चाहे वो कैप्टन अमरिंदर हो, चाहे भूपेंद्र बघेल हो, या वो दिग्विजय सिंह और कमलनाथ हो, या और बहुत सारे नेता हैं। तो ये स्प्लिट जो है रीजनल लीडरशिप वर्सेस सेंट्रल लीडरशिप है, ये आप आइडियोलॉजिकल बराबर। स्प्लिट नहीं है। स्टेट लेवल पे जब कोई लीडर आता है उभर के, तो वो लीडर कौन से इश्यूज के ऊपर आता है? अभी देखो, फार्मर्स के बारे में अमरिंदर सिंह की एक बात है, चन्नी जो अभी नए मुख्यमंत्री है उनकी अलग बात है, शरद पवार दो तीन तरह से बात करे चुके हैं अभी तक। कभी कहते हैं वो इसको जरा रिफॉर्म करो, कभी कहते हैं उनको कैंसिल कर दो। मतलब आपको लाइन क्या चाहिए? ये आइडियोलॉजी का सवाल नहीं होता है, ये सवाल होता है पॉलिटिकल लाइन का, बेस्ड ऑन आइडियोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग। लेकिन अभी आइडियोलॉजी नहीं है तो सिर्फ पॉलिटिकल लाइन अपॉर्चुनिज्म में जाती है। और इसी के लिए मैं कहता हूँ जो स्टेट लेवल पे लीडर आएंगे, जो इंदिरा गांधी के जमाने में आए, आपको याद होगा वो तब के जमाने में स्प्लिट होने के पहले और स्प्लिट होने के बाद भी एक नेहरू फोरम नाम का फोरम था और एक सोशलिस्ट फोरम नाम का दूसरा नाम था। अभी जो बड़े बड़े यंग टर्क आगे समाजवादी पार्टी में गए वो सब इंदिरा गांधी के समर्थक थे। अभी आजकल तो उनको सिर्फ इमरजेंसी याद आती है, लेकिन चंद्रशेखर वगैरह सब लोग इंदिरा गांधी के कट्टर समर्थक थे। कट्टर समर्थक लोग से लेकर, हाँ, मधुलिमय, जॉर्ज फर्नांडिस सब 1969 में इंदिरा गांधी के समर्थक थे। तो मुझे लगता है कि तब क्यों समर्थक थे उसका मैं समर्थन करता हूँ, उनके समर्थन होने का, क्योंकि उनके पास जो प्रोग्राम था वो आइडियोलॉजी बेस्ड, नेशनल सोशलिस्टिक बेस्ड था। और उसमें फर्क हो गए, लोहिया का अलग होगा, नरेंद्र देव का अलग होगा, लेकिन एक फोकस था। अभी आज फोकस ही नहीं है। कोई भी इश्यू लो, वर्किंग क्लास का ले लो, एग्रीकल्चरिस्ट का ले लो, और आजकल फॉरेन पॉलिसी की तो चर्चा ही नहीं है। तब फॉरेन पॉलिसी के बारे में कितनी चर्चा होती थी, मतभेद होते थे। तो आजकल फॉरेन पॉलिसी नाम की चीज ही नहीं है पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर। सर, आपने आइडियोलॉजिकल डिफरेंस की बात की और आपने कहा कि पॉलिटिकल जो वो है आपका पॉइंट कि भाई पॉलिटिक्स में आना या सरकार बनाना या इलेक्शन जीतना इंपॉर्टेंट नहीं होना चाहिए, आइडियोलॉजी पर चलना चाहिए। लेकिन ये सवाल थोड़ा सा उससे जुड़ता हुआ, क्योंकि बहुत आभासी ये है बात
कांग्रेस ने क्या किया? आप बहुत आइडियोलॉजी की बात कर रहे हैं, मतलब कांग्रेस की बात प्रेजेंट लीडरशिप में। कांग्रेस ने महाराष्ट्र में क्या किया? आप महाराष्ट्र में हैं, आप तो उन लोगों में से जिन्होंने शिवसेना ने आपको ऑफर किया, आपने शिवसेना की एमपीशिप नहीं ली, लेकिन शिवसेना और कांग्रेस क्या कोई मेल है? लेकिन आप उनके साथ सरकार चला रहे हैं ना। आपने बीजेपी को हराने के लिए ममता बनर्जी के साथ एक ब्लाइंड गेम खेला वेस्ट बंगाल में। आप सीपीएम के खिलाफ केरल में चुनाव लड़ते हैं, सीपीएम के साथ वेस्ट बंगाल में चुनाव लड़ते हैं। आप असम में किस पार्टी के साथ जाते हैं जिस पार्टी की लीडरशिप, आपकी लीडरशिप उसके साथ नहीं है। तो ये बहुत सारे कंफ्यूजन है ना। इसको आप क्लीन चिट देना चाहते हैं, लीडरशिप को दे दीजिए। मैं आपको कुछ उदाहरण के तौर नहीं, पर मैं किसी को क्लीन चिट नहीं देना चाहता और किसी को मैं आरोपी के पिंजरे में भी खड़ा नहीं करना चाहता। लेकिन सवाल यह है कि जैसे कि मुस्लिम लीग कांग्रेस के खिलाफ थी 1937 में, 1949 तक, 1952 तक मुस्लिम लीग कांग्रेस के खिलाफ थी। बाद में कांग्रेस के अलाय हो गई मुस्लिम लीग, तो मुस्लिम लीग की मुस्लिम लीग ही रही, उनकी पार्टी की लाइन वही रही। फिर भी कांग्रेस की वो बाद में अलायंस हो गई। सिमिलरली सीपीएम की कांग्रेस खिलाफ थी, लेकिन उन्होंने बंगाल में कांग्रेस को साथ में ले लिया। कह सकती थी सीपीएम कि हमारे आइडियोलॉजिकल लाइन में कांग्रेस हमारी साथ नहीं आ सकती है। कोई लोगों ने उन्हें कहा वो पार्टी में, लेकिन बाद में तो उन्होंने एडजस्ट कर लिया। जिस तरह आप कहते हैं कांग्रेस ने एडजस्ट किया है, तो बाकी पार्टी ने भी एडजस्ट किया है। तो ये जो है नहीं, वो बाकी का होगा। एक्सीडेंस, मैं तो आज बात हम कांग्रेस की कर रहे हैं, इसलिए कह रहा हूँ। मैं ये कोई कांग्रेस को उसमें नहीं डाल रहा हूँ, घेरे में नहीं डाल रहा हूँ, आरोपों के घेरे में। सारी पार्टी ऐसी कर रही है, लेकिन आज हम कांग्रेस की चर्चा कर रहे हैं, इसलिए ये बात हुई। क्राइसिस कांग्रेस का हो रहा है, इसलिए बात कर रहा हूँ। और सब लोगों को क्लीन चिट नहीं दे रहे हम। नहीं, पॉलिटिकल एक्सीजेंसी सिचुएशन अभी आपको तय करना होता है हमेशा। आपको याद होगा कि मैं आपके इतिहास की ज्यादा रेफरेंस कर रहा हूँ, लेकिन जब 1941 में पूरे देश के, दुनिया के मेन शत्रु कौन था, मेन एनिमी कौन था? हिटलर और नाजिज्म। तो अमेरिका जैसी आर्क कैपिटलिस्ट कंट्री, इंग्लैंड जैसी इंपीरियलिस्ट कंट्री और रशिया, ये साथ में आ गए हिटलर को डिफीट करने के लिए। वॉर खत्म होते ही 8 दिन के अंदर अमेरिका और मतलब ट्रूमन और चर्चिल ने रशिया के खिलाफ भूमिका ली, लेकिन हिटलर को डिफीट करने के लिए साथ आ गए। हार्ड कोर कैपिटलिस्ट, हार्ड कोर इंपीरियलिस्ट और हार्ड कोर सोशलिस्ट साथ में आ गए। उसी तरह महाराष्ट्र में जब उनको लगता है बीजेपी, तो उन्होंने अलायंस किया है। इसका मतलब ये आइडियोलॉजिकल अलायंस नहीं है कि बीजेपी को किस तरह उस जमाने में हिटलर को दूर रखना, यही एजेंडा था। तो मैं नहीं ये कहना चाहता कि उतनी ये बड़ी स्ट्रैटेजी वगैरह है, लेकिन जब आप कहते हैं कि आपका मेन एनिमी कौन, आइडियोलॉजिकल एनिमी और पॉलिटिकल एनिमी। अभी आइडियोलॉजिकल एंड पॉलिटिकल एनिमी टुडे इन द वर्ल्ड इज नरेंद्र मोदी लेड बीजेपी। तो अभी उद्धव ठाकरे को किसी ने सोचा था, किसी ने भी नहीं सोचा था कि उद्धव ठाकरे अपफ्रंट मोदी के खिलाफ बोलेंगे। आपको मैं बता सकता हूँ, उद्धव ठाकरे जिस तरह से मोदी के खिलाफ बात करते हैं, उस तरह कांग्रेस वाले भी नहीं करते। महाराष्ट्र में कांग्रेस वाले उतनी एग्रेशन से मोदी के खिलाफ बात नहीं करते उद्धव ठाकरे करता है। अभी वो तो पूरी हिंदुत्व की पार्टी थी, पहले बाल ठाकरे की पार्टी थी, फिर भी अभी ये अलायंस हो गया है। तो मुझे लगता है ये पॉलिटिकल एक्सिजेंसी ध्यान में रखनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि ये तीनों का हमेशा के लिए अलायंस है, जैसा चर्चिल, आइजनहॉवर और स्टालिन का अलायंस परमानेंट नहीं था, ये भी शायद परमानेंट नहीं होगा। लेकिन जब तक बीजेपी है तब तक उनको साथ में रहना पड़ेगा। चलिए सर, आखिरी सवाल। आपसे तो ज्ञान मिलता ही रहेगा, उसको मैं रोक नहीं सकता, लेकिन वक्त की थोड़ी सी कमी। आखिरी सवाल, क्या आज आप देख रहे हैं कि ये क्राइसिस जो कांग्रेस का है वो बिना स्प्लिट के सुधर सकता है, या लीडरशिप के इमिनेंट चेंज की बहुत बड़ी जरूरत है और इसका जो है मतलब लीड जो है खुद गांधी परिवार को करनी चाहिए? क्या है आपको रास्ता? आखिरी सवाल में आपसे इसके बारे में मेरा विचार क्या है, कौन से पॉइंट पे क्या विचार है आपका सवाल में? व्हाट इज योर स्पेसिफिक क्वेश्चन? मेरा सवाल यही है कि क्या आप एक तो स्प्लिट देख रहे हैं, वर्टिकल स्प्लिट पार्टी में, आप पहली बात। दूसरी बात, यदि ये स्प्लिट नहीं होनी है तो किसको लीड करना पड़ेगा? क्या गांधी परिवार को लीड करके कहना चाहिए कि भाई अब ये खत्म कीजिए और आप संभालिए इसको फॉर्मली, और एक चुनाव करवा के नए अध्यक्ष को देकर इस रास्ते को खत्म किया जाए? या बहुत सारे लोग जैसे कहते हैं कि नहीं, एडेसिव केवल गांधी परिवार है, बिना गांधी परिवार के तो ये टूट के बिखर ही जाएगी कांग्रेस।
नहीं, मुझे नहीं लगता है कि वर्टिकल स्प्लिट के लिए जो आइडियोलॉजिकल कन्फ्रंटेशन होना चाहिए वहां तक पहुंची है चीज, क्योंकि आपने देखा होगा और सुना भी होगा, ये सब जो लोग हैं ग्रुप 23 के, किसी ने भी डायरेक्टली गांधी परिवार के खिलाफ बोला नहीं। वो कहते हैं हम थोड़ी खिलाफ बोल रहे हैं, हम इतना ही बोल रहे हैं कि आप डिसीजन ले लो, आप कमिटी मीटिंग बुलाओ, आप लोगों के पास चर्चा करो, आप डिसाइड करो, रोड मैप डिसाइड करो। वो ये नहीं कह रहे हैं कि जब तक आप है तब तक पार्टी नहीं चलेगी। ऐसा किसी ने भी स्टैंड नहीं लिया है जैसा निजलिंगप्पा ने लिया था। ये सब लोग कह रहे हैं कि सोनिया जी को रहने दो, सोनिया जी को रहने दो, राहुल जी को रहने दो, प्रियंका को भी रहने दो, हम साथ में रहेंगे, लेकिन लाइन क्या है? तो वो हाईकमांड से पूछ रहे हैं कि आप कम्युनिकेशन चैनल एस्टेब्लिश करो, आप मीटिंग शुरू करो, आप इंटरनल इलेक्शन ले लो। ये नहीं कह रहे कि आप हट जाओ। वो किसी ने भी नहीं कहा है। मे भी शायद उनके दिल में हो भी सकता है, लेकिन अभी तक पब्लिक में उन्होंने कभी ये नहीं कहा है कि गांधी फैमिली शुड गेट आउट ऑफ पॉलिटिक्स। दैट इज बीइंग सेड बाय रामचंद्र गुहा, दैट इज बीइंग सेड बाय हरीश खरे, दैट इज बीइंग सेड बाय पॉलिटिकल कमेंटेटर्स, बट इनसाइड द पार्टी दोज हु आर पार्ट ऑफ द G23 हैव नॉट सेड कि आप हट जाओ। ऐसा किसी ने भी नहीं कहा है। जब तक वो इसका मतलब ये वो मानते हैं कि ये ऑनरशिप तो गांधी परिवार की है, अब हमें CEO, जनरल मैनेजर, वाइस प्रेसिडेंट बना दो। So they should correct their course, they should correct their communication course। ये तो मैं भी मानता हूँ, मैं G23 पे साइन करने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन ये मैं भी मानता हूँ कि कम्युनिकेशन की जरूरत है पार्टी में कम्युनिकेशन चैनल की जरूरत है, लोगों को भिड़ने की जरूरत है। तमिलनाडु से लेकर कश्मीर तक कंटिन्यूअस राहुल गांधी शुड कैंपेन लाइक पदयात्रा, लाइक विनोबा भावे। दैट इज माय व्यू। लेकिन मेरा व्यू होने से क्या फायदा है? He has to decide। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरा ज्ञानवर्धन किया और इस पर विस्तार से चर्चा की, आपसे बहुत कुछ समझने की कोशिश की। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। बहुत शुक्रिया। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।